हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी क्लास न्यू स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्लास है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी एल्कीन का कर लिया। तो नाउ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट सबसे पहले आप एक मोटिवेशनल पोएट देखें। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड प्लीज स्माइल इन योर फेस एंड रिलैक्स माइंड। तो लेट्स सी। नाउ next topic in IUPAC nomenclature, types of carbon atom. Next topic, types of carbon atom. तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर एंड बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So now types of carbon atom, how to identify? First point. Let's see the first point क्या होगा? When one carbon attach with, joined with, when one carbon joined with another carbon or may not join and this is represented by 1 degree कार्बन। मतलब समझ में आया? एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो तो 1 कार्बन अटैच ओनली 1 कार्बन, लाइक सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, या भी हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड प्राइमरी कार्बन एंड इन मीथेन देयर इज नो अदर कार्बन। What is the structure? Methane CH4. So 1 carbon attached with 1 carbon. This is all primary carbon. 1 carbon may not join with another carbon. एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होगा तो भी उसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। Clear this point? So what is 1 degree carbon? When 1 carbon joined with another carbon, only 1 carbon here. Both are 1 degree carbon. When 1 carbon may not join, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच नहीं हो तो भी हम उसे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। Now clear? Next is second point. अब second point क्या होगा? Secondary carbon. How to represent it? When one carbon joined with attached with 2 carbon, then it is called the secondary carbon. Then it is called 2 degree and secondary, it is called 2 degree and secondary carbon. Clear? So how to represent? Let's see the example. What is the example of 2 degree carbon? So first 1 degree carbon is clear. Now second carbon, 1 carbon attached with 2 carbon. So this is called secondary carbon and 2 degree carbon. So how to represent? We टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे लिखना है आपको एग्जाम्पल? लेट्स सी। 1 कार्बन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन,
one carbon attach with two carbon and it attach with hydrogen. So there is two carbon, this is 1 degree, this is 1 degree, and one carbon attached with two carbon. Two carbon here, so it is called the 2 degree and secondary carbon atom. So clear? Now what is the third point? Next point, when one carbon attached with three carbon. Let's see. When one carbon, you can take an example, one carbon attached with three carbon. So this is three carbon. So one carbon attached with three carbon. So one carbon here, 1, 2, 3. Three carbon attached with one carbon. What is the name of this? This is called the 1 degree, 2 degree, 3 degree. One carbon attached with three carbon. This is called 3 degree. And tertiary. What is the name? Tertiary carbon. Its name is tertiary carbon. So what is the name? Tertiary carbon. And what is the IUPAC name? 1, 2, 3, 4. What is the IUPAC name? 1, 2, 3. Take an long chain. We already discussed about the IUPAC name. So what is the IUPAC name of this complex? You can write. How to write? 1, 2 and 3. What is the name? 2-methyl. Its IUPAC name is 2-methyl and 3 carbon is prop, and this is the example of propane. So what is the name? 2-methyl propane. Clear? Now what is the name? CH3 and satisfied with one hydrogen also here. And this is called the 2 degree. Now write down the name. CH3, CH2, CH3. One carbon attached with two carbon. This is called 2 degree. One carbon attached and its name is CH3, CH2, CH3 and propane. This is called and propane. And propane is common name. You can write IUPAC name propane. So clear? So what is the 3 degree and what is the 2 degree? Now next you can take an example of 4 degree carbon. This is 3 degree carbon and now 4 degree carbon, and this is also called the quaternary carbon. Quaternary carbon. So what is the example of quaternary carbon? Neopentane, one carbon attached with 4 carbon atom. एक कार्बन 4 कार्बन से ज्वाइंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नियोपेंटेन. नियोपेंटेन एग्जाम्पल है इसका. तो 1 कार्बन, यू कैन सी 1 कार्बन अटैच विद 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन हियर एंड व्हाट इज इट्स नेम? क्या नाम होगा इसका? एक कार्बन से 4 कार्बन यहाँ अटैच है तो इसका नाम होगा 4 डिग्री कार्बन या इसे हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन. इसी तरह आप हाइड्रोजन को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं. 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा. 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो 2 डिग्री होगा. 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो 1 डिग्री होगा. 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है. क्यों? देखो यार, कार्बन से CH3 अटैच है, देयर इज नो हाइड्रोजन, इट मीन्स 4 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता. तो CH3, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? नाउ सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन. रूल आपको वही फॉलो करने हैं. रूल आप प्रैक्टिस करें इसकी. 1, 2, 3. क्या नाम होगा अगेन? 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल है तो आपको 2 दो बार लिखना होगा. 2 डाई मिथाइल and 3 carbon is called prop and its name is 2 dimethyl propane. So now it's clear what is the types of carbon atom. 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree. I recall the topic again. दोबारा ध्यान से सुने.
फर्स्ट व्हेन वन कार्बन अटैच विद वन कार्बन, एक कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट 2 डिग्री, जब एक कार्बन दो कार्बन से अटैच हो तो उसे 2 डिग्री कहेंगे। 3 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, ज्वाइंट हो तो उसे आप 3 डिग्री या टर्सरी बोलेंगे। 4 डिग्री, एक कार्बन अगर 4 कार्बन से अटैच हो तो उसे आप 4 डिग्री कहेंगे। नाउ क्लियर? तो हाउ टू क्लासिफाई द कार्बन एटम? Now next topic we will discuss the alkyl group. What is alkyl group? Write down the next topic. Now we will discuss the alkyl group. So alkyl group. Alkyl group. एल्केन आपको याद है सभी को? एल्केन क्या होता है? RH। R का मतलब यह होता है एल्काइल ग्रुप। एल्केन में से अगर आप एक H रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, एक H हमने हटा दिया तो वो क्या बन गया? R। इसी को हम कहते हैं एल्काइल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द एल्काइल? एल्केन में से अगर आप एक H रिप्लेस कर दोगे तो उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इट मीन्स जनरल फॉर्मूले में क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम होगा। वहां हम फॉर्मूला CnH2n+2 लिखते थे, यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CnH2n+1। तो इन एल्काइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज लेस देन एल्केन। ये आपका एल्केन है। एल्केन से एक हाइड्रोजन एल्काइल में कम होगा। 1 हाइड्रोजन इज लेस, तो एक हाइड्रोजन कम होगा। जैसे सपोज वी टेक एन एग्जांपल लाइक मीथेन, ये आपका एल्केन है। अब इसमें से आपने एक H रिप्लेस किया तो क्या बन गया? नाउ इट इज कॉल्ड द एल्काइल एंड व्हाट इज द नेम? मिथाइल। क्लियर? तो नाउ सेकेंड पॉइंट, C2H5 CH3 CH3, what is the name? Methane. And what is the group? C2H5. This is called ethyl and this is called ethyl. Clear? IPC name is methane, common name is methane, Mars gas, trivial name is Mars gas. CH3 ethane and C2H5 ethyl. Like this. We take an example of propane, CH3 CH2 and CH3. What is its name? Propane. Propane में आप देखिए, there is 2 type of carbon and 2 type of hydrogen. This is 1 degree. This is 1 degree. एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री होगा, एक कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री होगा, और ये कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइंट है इसलिए 2 डिग्री होगा सेकेंडरी। अब आप हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन हम यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से रिप्लेस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपाइल। ठीक है, एंड प्रोपाइल, कॉमन नेम इज एंड प्रोपाइल एंड प्रोपाइल। सो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट CH3 CH2 and CH2 dash. Okay, next numbering start from here 1 2 3. Now next possibility is CH3 CH, यहाँ से आप हटाओगे एक हाइड्रोजन and CH3. तो now what is the name? This is propyl. What is the name? This is called propyl, propyl. And its name is isopropyl. Isopropyl. What is isopropyl? CH3 CH CH3. Iso group आप याद रखें, CH CH3 and CH3. This group is called the iso. I already learned about the iso, neo and these are common name. Isopropyl group इसे कहते हैं, तो iso group इसे कहते हैं। तो CH3 CH CH3, this is called the isopropyl. Now it's clear. Next point is, what is the next point now?
again we will discuss. And common name is N-propyl. Okay, and common name is N-propyl, and iso always used in common name, neo. Now after propane we take an example of butane. अब ब्यूटेन में से क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? आइसोप्रोपाइल का कॉमन आईपीसी नेम क्या होगा बताओगे? व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल? ये आइसोप्रोपाइल अभी आपको बताया था. आईपीसी नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम है. यहां से आप देखिए, ये आपका CH3CH है. अब अगर हमने H रिप्लेस कर दिया सेकेंड पोजीशन, तो व्हाट इज द पोजीशन? 1, 2 and 3. So now it is called the 2-propyl. 2-propyl. This is IPC name. Clear? Now next example, we take an example, third and now fourth example. Butane. So what is the formula of butane? CH3, CH2, CH2 and CH3. तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? कौन कौन से हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं? एक तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये आपका 1 डिग्री है. यहाँ आप देखो ये भी 1 डिग्री है. नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी कॉमन बनेगा 2 डिग्री. तो अगेन देयर इज 2 पॉसिबिलिटी. यहाँ दोबारा 2 पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? CH3, CH2 and CH2. What is the name? Butyl. What is the name? Butyl. And IPC name is butyl. Common name is N-butyl. Clear? So what is the name? N-butyl. और IPC नेम क्या होगा बेटा? ब्यूटिल. तो CH3, CH2, CH2. Now taken another example. Now hydrogen replaced from here. CH3, CH डैश. डैश का मतलब क्या होता है बेटा? यहां से ये किसी भी चेन में ज्वाइंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ डैश लगाते हैं, एक वैलेंसी शो करते हैं. CH3, CH, CH2 and CH3. तो नाउ व्हाट इज द नेम? इट्स CH3, CH, CH2, CH3. तो डैश, दिस इज द डैश. ये अटैच होगा किसी भी चेन से. तो ब्यूटेन से आप कौन सा ग्रुप बता सकते हो? एक और हाइड्रोजन हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ से. तो 1, 2, 3, 4, 2 ब्यूटाइल एंड इट्स ऑल्सो नेम इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. इसे आप सेकेंडरी ब्यूटेल भी कह सकते हैं. कॉमन नेम इज सेकेंडरी ब्यूटेल. IPC name is 1, 2, 3 and 4. IPC name is 2. 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ब्यूटाइल. 2 ब्यूटाइल. सेकेंडरी क्यों है? एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे. ओके, तो एक कार्बन अटैच विद 2 कार्बन, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटेन. एंड 2 ब्यूटाइल, इसे आप आइसोप्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन तो अटैच है, सेकेंडरी भी है ये, लेकिन इसे आइसो ग्रुप भी कहा जाता है. कॉमन नेम CH3 अगर अटैच है तो उसे आइसो ग्रुप कहते हैं. अब इसी तरह आप इसकी ब्रांचिंग कर दें. आइसोब्यूटेन को हम इस तरह लिख सकते हैं. ब्रांचिंग हो गई. ब्रांचिंग का मतलब समझते हैं, जैसे एक ट्री है, ट्री में से एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच में से और ब्रांचेस निकलती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन एल्केन. तो ब्रांचिंग, एक ब्रांच है, उसके अंदर दूसरी ब्रांच, फिर ब्रांच, तो इस तरह ब्रांचिंग होती है. तो CH3, CH2, तो CH3, CH, CH3, CH3, कितने कार्बन है यहाँ? 1, 2, 3, 4 कार्बन. क्या नाम होगा इसका? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन. इसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन. इट्स IPC नेम इज ब्यूटेन and common name is N-butane और IPC नेम क्या होगा? ब्यूटेन. CH3, CH, CH3, CH.
अब यहाँ पॉसिबिलिटी देखिए, देयर इज टू पॉसिबिलिटी अगेन। आप इस कार्बन में से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो देयर इज अगेन टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3 देन CH3। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये। अब इसका नाम देखिए क्या होगा, 1 2 3 टर्सरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज द नेम, टर्सरी ब्यूटाइल। राइट डाउन द फॉर्मूला, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, टर्सरी ब्यूटाइल। एंड आईपीसी नेम क्या होगा भाई, आईपीसी नेम 1 एंड 2 एंड 3। तो 2 पोजीशन पर आपका मिथाइल है। आईपीसी नेम क्या होगा, अभी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के हमने नोमेनक्लेचर किए थे, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 1 2 3। 2 पोजीशन पर तो ये अटैच है चेन से, तो ये पोजीशन हो गई 2 पर मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका आईपीसी नेम, टर्ट ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपिल, 2 मिथाइल प्रोपिल। तो व्हाट इज इट्स आईपीसी नेम, 2 मिथाइल प्रोपिल। क्लियर? तो आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन, नेक्स्ट आइसोब्यूटेन और CH3 CH CH3 CH, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, पेंटेन। फिफ्थ एग्जांपल वी कैन टेक पेंटेन। तो हाउ टू राइट द एल्काइल ग्रुप ऑफ पेंटेन। अब आप प्रैक्टिस करें पेंटेन की कैसे बना सकते हैं हम, एल्काइल ग्रुप क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो अगेन देखें पेंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्ट्रक्चर पेंटेन। तो व्हाट इज द पेंटेन, तो पेंटेन की स्ट्रक्चर आप लिखे CH3 CH2 एंड CH2 देन CH3। तो हाउ मेनी कार्बन हियर, कितने कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इज प्रेजेंट। अब पॉसिबिलिटी देखिए, 1 डिग्री, दिस इज अगेन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। अब आप हाइड्रोजन कैसे रिमूव करेंगे, आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से कॉमन होगा तो एक बन गया एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन आप यहाँ से पोजीशन से, इस पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं, ये 2 डिग्री होगा। तो नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फ्रॉम द हाइड्रोजन, देयर इज रिमूवल ऑफ 2 पॉसिबिलिटी। तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CH2। फर्स्ट क्या होगा CH3, यू कैन राइट CH2 1 2 3, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, CH2 होल थ्राइस एंड 1 CH2 हियर एंड CH2। काउंट कर लें, 1 3 एंड 1 4 एंड 5। तो व्हाट इज इट्स नेम, कॉमन नेम एन पेंटिल। कॉमन नेम क्या होगा बेटा, एन पेंटिल, और आईपीसी नेम पेंटिल। तो एन पेंटिल इट्स कॉमन नेम, आईपीसी नेम इज पेंटिल। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आप हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी। सो हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करें, CH3 अगेन CH डैश लगा दिया हमने, तो 1 2 CH2, हाउ मेनी CH2 हियर, 2 एंड CH3, यू कैन राइट लाइक दिस। तो CH3 CH CH2 CH2 CH3। तो what is the name of this compound, you can write the name 1 2 position, 1 2 पोजीशन पर आपका ये अटैच है, तो इसका क्या नाम होगा, 2 पेंटाइल, या इसे हम सेकेंडरी पेंटाइल भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, what is the name, 2 pentyl, and it is also called the secondary pentyl, secondary pentyl. So it's clear how to write the name. Now take another example, we can take another example like branching कर दें। अब इसमें अगर हमने ब्रांचिंग कर दिया तो क्या हो गया, CH3
CH3, CH, CH2, देन CH3। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। क्या नाम होगा इसका? आइसोपेंटेन। व्हाट इज इट्स नेम? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन होगा। अब आप क्या करेंगे? अब इसकी हम आईपीसी नेम लिख दें। आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका सब्स्टिट्यूएंट पास है। तो 1 2 3 4। तो व्हाट इज द नेम? आईपीसी नेम क्या होगा? दोबारा देख लें। 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पर मिथाइल है, ओके। तो 2 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। तो क्या लिखोगे यहाँ? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो ये तो इसका हो गया कॉमन नेम और ये हो गया आईपीसी। अब पॉसिबिलिटी देखिए। आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। तो देयर इज different possibility to removal of hydrogen. So how many possibility from here? Now let's see. So how many possibility? You can take different examples. So removal of hydrogen. Now removal of hydrogen अब आप करें। सपोज आपने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो क्या बनेगा आपका? CH2, CH, CH3, CH2 एंड CH3। क्लियर? फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, आपने CH2 का से हटा दिया, यहां से हटाया। अब देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फिर हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो। अब आपने H यहाँ से हटाए या यहाँ से हटाए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है। ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। ये कौन सा होगा? 1 2 3 कार्बन है तो 3 डिग्री होगा। ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। क्लियर? अब यहाँ से आप रिप्लेस करें। CH3, C, CH3, CH, CH2 एंड नेक्स्ट CH2। ठीक है, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा? एक यहाँ से रिप्लेस हुआ, एक रिप्लेस यहाँ से हुआ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से होगी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से होगी। अब दूसरा रिमूवल करें। यहाँ से अगर हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो क्या होगा? CH3, C डैश, CH3, नेक्स्ट CH2 एंड CH3। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अब कौन सा हाइड्रोजन हमें रिमूव करना है? देखो यहां से आपने एक H रिप्लेस किया, अब इस वाले H को रिप्लेस करते हैं। तो CH3, CH, CH3, देन CH डैश, CH3। तो देयर इज different possibility. तो CH2, CH3, CH3. Now how to write the name? There is different IUPAC name. तो how to write the name? CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Now it's work as a substituent. अब ये जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करो 1, क्योंकि आपका कार्बन चेन कहाँ अटैच है? यहाँ से है। तो 1 2 3 4। क्या नाम होगा? 2 पोजीशन पर मिथाइल है तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। क्लियर? तो क्या नाम हुआ इसका? 2 मिथाइल। एंड 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटिल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो आईपीसी नेम इज क्लियर, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। नाउ CH3, CH, CH3, CH2, CH2। तो अब इसका नाम आपको कैसे लिखना है? 1 2 3। तो व्हाट इज द नेम? एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द आइसोपेंटाइल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोपेंटाइल होगा। क्यों होगा? देखो 1 2 3 4। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आइसो। आइसो बताया था आपको। CH के साथ CH3, अगर CH3 अटैच है तो उसे हम आइसो बोलते हैं। तो आइसो
1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, ये तो कॉमन नेम हो गया। अब दूसरा इसका आईपीसी नेम देखो, नंबरिंग हम करेंगे 1, यहां से अटैच होगा वो चेन से, 2 अभी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी 3 और ये पोजीशन है 4 3 4 एंड 1 2 3। तो 3 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन। 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ इट्स क्लियर, आईपीसी नेम। नाउ लेट्स सी CH3 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 CH2 CH3। अब आपका चेन यहाँ से अटैच है, तो आपकी जो कार्बन चेन होगी वो कहाँ से अटैच है बेटा, इस C से अटैच है। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे, नंबरिंग यहाँ से ही अटैच है, ठीक है। नंबरिंग आपकी 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल। आईपीसी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल। ओके, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो 2 पोजीशन पर मिथाइल आपने लगा दिया, 1 2 पोजीशन, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर मिथाइल होगा। हमें इस नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, इसे हम लोएस्ट लॉकेंट रूल भी कहते हैं, या लोएस्ट पोजीशन आपको बतानी है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अब किसका नाम रह गया हमारा, इस कंपाउंड का। तो इसका नाम कैसे करोगे, 1 2 पोजीशन 3 एंड 4, 1 2 3। तो हाउ टू नंबरिंग, सबसे पहले हमें उसी तरह सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। तो हाउ टू राइट द नेम, तो नाउ सेलेक्ट द, अब आपकी ये चेन यहां से अटैच होगी, ठीक है। तो CH3 CH CH CH3 CH। नाउ सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन, ये हमने लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग 1 2 पोजीशन पर मिथाइल है, यहाँ 1 2 पोजीशन पर आपकी एक चेन अटैच है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या हो गया, 1 2, ये 3 पोजीशन है, ये आपकी 4 पोजीशन है। तो 2 मिथाइल, क्या नाम हुआ, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ आपका 1 2 पोजीशन पर, एंड इट्स नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेल, 2 पोजीशन पर, अगर यहाँ देखिए 2 मिथाइल, तो 1 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल है, एंड 2 मिथाइल 3 ब्यूटेल, ये आपको पोजीशन भी बतानी होगी। तो 2 मिथाइल पर तो ये हो गया, और 3 पोजीशन ये हो गई, तो 2 मिथाइल 3 ब्यूटाइल। क्यों क्यों लिखा है हमने 3 पोजीशन, क्योंकि 3 पोजीशन आपकी क्या इंडिकेट करेगी, किस रिंग से ये, किस चेन से किस पोजीशन पर ये अटैच है। इसी तरह यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 मिथाइल तो हो गया। अब पोजीशन क्या है, 2 पर आपकी चेन अटैच है, तो हमें पोजीशन भी बतानी है। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटाइल। क्लियर। तो यहाँ तो 1 पोजीशन पर है, इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 1 पोजीशन है, तो पोजीशन इंडिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ 2 पोजीशन पर अटैच है ये, तो इसलिए हमें 2 ब्यूटाइल भी लिखना होगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटाइल। क्लियर। यहाँ देखिए 1 2 3, अब 3 पोजीशन पर अटैच है, तो हमें लिखना होगा 2 मिथाइल 3 ब्यूटाइल, इट्स आईपीसी नेम। नाउ क्लियर। तो व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप, now 2 methyl butyl 3 methyl butyl 2 methyl 2 butyl, and its name is 2 methyl 3 butyl. So these are alkyl group. Now it's clear all of you. Thank you.